Hello, guys. Welcome back to Kalpana Se Vastavikta Tak, episode 4. Today, we have with us a young builder, entrepreneur who has already achieved what many only dream of. From building products used by thousands of students to creating AI powered platforms, launching successful subscription based products, and turning ideas into real world solutions. He has built Hajri, a platform serving over 5,000 students, a 2,000 plus daily active users, created Turian AI, a multi advanced agent that is for academic assistant, and developed a Result Hub Institute, which has reached over 10,000 plus users and 1 lakh plus page views. As it wasn't enough, he was selected for the AI Summer Residency 2026 at IIM Ahmedabad Ventures among top 43 students selected from more than 32,000 applicants across India. But what's truly fascinating is the story behind these achievements. From once dreaming of becoming a doctor to choosing engineering. So, without further ado, let's welcome Sujal Chaudhary Bhaiya to Kalpana Se Vastavikta Tak. Hello, Shashank. How are you? All good, Bhaiya. So, without further ado, let's move on to the direct conversation, starting off with our very first round, that is the beginning. मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, you wanted to become a doctor, but today you are building AI products, you are getting into tech domain. Looking back, do you think that students should decide their career at 15 or 16, or should they first develop curiosity and let the career follow? I feel curiosity development is the most important thing during the career building stuff. So yeah, जो तुम्हें लग रहा है कि you are interested in that thing, just follow that, and I feel कि career खुद develop हो जाता है. तो if you want to know about my story कि how I switch from becoming doctor to engineer, so I can start with that. So yeah, like in my 7th class, so one of my रिश्तेदार came to my home to give NEET का exam. तो ड्यूरिंग दैट नाइट कि वो आए हैं, अगले दिन उनका एग्जाम है, तो ही टोल्ड मी अबाउट फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. ठीक है, विच वाज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी. तो 7th क्लास में आई डिसाइडेड कि मैं भी एक दिन नीट का पेपर दूंगा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा. ठीक है, बट मूविंग टू 9th क्लास, लाइक मेरा पाला पड़ा विद अ चैप्टर नेम डाइवर्सिटी, विच वाज क्वाइट ऐसा कि रटने वाला. So then I felt like till 7 to 8 साइंस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मेरे फुल मार्क्स आते थे इंक्लूडिंग बायोलॉजी, बट वो रटने वाला स्टफ कभी नहीं आया था. वो रटने वाला स्टफ आया 9th में, एंड बस उसके बाद तो आई डिसाइडेड कि नहीं, ये पाथ तो बिल्कुल नहीं लेना है. बट इन बिटवीन दैट 8th क्लास में लकीली लाइक मेरे स्कूल का जो करिकुलम था उसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था, and उसका last chapter was introduction to Python, like in my 8th class end. तो during 8th के end में like our school has taught us कि like how to write a basic Python का code. तो if you remember कि एक code होता है where you can just print multiplication tables. So that code just fascinate me a lot कि ये कुछ तो crazy चीज़ है कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल रहा हूँ और ये उसका टेबल प्रिंट कर रहा है. तो जब से मुझे पता था कि प्रोग्रामिंग जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, बट ये स्विच हुआ 9th में. अलोंग विद दैट मेरे 9th में एक चुल मची मेरे अंदर कि आई हैव टू अर्न सम मनी. सो आई सर्च फॉर द वेज कि हाउ आई कैन अर्न मनी. तो सबसे पहली चीज जो आई ऑन द सर्च रिजल्ट, इट वाज बिल्डिंग वेबसाइट्स. सो या आई बिल्ड माय फर्स्ट वेबसाइट इन 9th विद माई फोन ओनली. लाइक मेरे पास उस टाइम पे लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था, तो आई स्टार्टेड विद माई फोन ओनली. देन अब मुझे एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेना था, तो आई डिसाइडेड कि आई विल बिल्ड माई लैपटॉप कंप्यूटर ऑन माई ओन. ठीक है, तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि एक कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए व्हाट आर द पार्ट्स रिक्वायर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू माई नीड क्या क्या पार्ट्स बेस्ट हो सकते हैं. So I searched for 2-3 months.
देन जब मुझे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट पार्ट मिल गए, देन आई वेंट टू नेहरू प्लेस during the lockdown only, and I purchased each and every part, like which includes CPU, motherboard and power supply, cabinet, ये सब. फिर like एक option था कि शॉपकीपर मेरे लिए उसे असेंबल करके दे दे, बट ना, मैं उन सब चीज़ों को घर लेके आया, and then I assembled each and everything on my own, and yeah, ऐसे I build my first computer. उसके बाद तो I keep starting building website and थिंकिंग कि कौन सी चीज चल सकती है सिंस द डे वन की किस किस चीज पे यूजर्स आ सकते हैं. वैसे अभी जो आपका पीसी आपने बिल्ड किया है, इज इट करेंटली हाँ वर्किंग और नॉट? हाँ हाँ ऑब्वियसली. मतलब रियल लाइफ में ही मतलब पूरा एप्लीकेशन कर लिया कि रियल हाँ इंजीनियरिंग विदाउट एंटरिंग कॉलेज पहले ही कर चुके हो आप एक्सपीरियंस. हाँ हाँ 9th क्लास से लाइक मैंने चीजें बनानी चालू कर दी थी. फिर लाइक आई फाउंड समथिंग, लाइक स्टार्टिंग से मेरे अंदर एक कीड़ा था कि जो भी चीज पहले से एग्जिस्टिंग बनी हुई है, लेट्स प्ले विद इट. तो जो मेरे कॉलेज लाइक स्कूल की वेबसाइट हुआ करती थी, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद इट. तो आई फाउंड अ बग इसमें कि आई कैन जस्ट सी किसी भी बच्चे का रिजल्ट, लाइक काइंड ऑफ हैकिंग टाइप ही. तो मैं कॉलेज लाइक स्कूल का रिजल्ट्स देख पाता था इवन बिफोर रिलीजिंग कि स्कूल रिलीज कर रहा है रिजल्ट्स को, उससे पहले ही मैं देख लेता था, और इवन अपने पूरी क्लास का देख सकता था. सो व्हाट आई क्रिएटेड, एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया जहाँ पे लूप लगा के काइंड ऑफ सबके रिजल्ट्स एक ही बार फेच हो जाते थे. एंड लाइक पीटीएम में जाने से पहले बच्चे मेरे पास मैसेज कर दिया करते थे कि भाई मेरा रिजल्ट बता दे, और मैं उन्हें रिजल्ट सेंड कर देता था. तो ऐसे करके आई ऑलमोस्ट हाईजैक माई लाइक स्कूल की वेबसाइट. उसमें मैं बहुत चीज़ें एक्सेस कर पाता था ड्यूरिंग माई 9th ओनली. बट हाँ, फिर उसके बाद तो लाइक मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ सीखा. तो लाइक आई फेल्ट कि लाइक फॉर लर्निंग लाइक वेब डेवलपमेंट यू नीड स्किल्स फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड. सो फ्रंट एंड के लिए HTML CSS मुझे आता था. आई स्किप जावास्क्रिप्ट. आई फील कि वो मेरे लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस टाइम पे. बट इंस्टेड ऑफ दैट आई लर्न PHP, personal home page, not quite popular, but हाँ, that I learned for the backend part, and उससे चीज़ें बनाना चालू कर दिया. Then during 10th, like I studied about NAS. NAS means network attached storage. तो उस चीज को देख के आई थॉट कि लाइक खुद का एक NAS बनाते हैं. लाइक मेरे पास हार्डवेयर नहीं था, बट आई रेंटेड अ सर्वर, एंड उस सर्वर पे कंप्लीट गूगल ड्राइव की क्लोन जैसी मैंने वेबसाइट बनाई फ्रॉम स्क्रैच एंड डिप्लॉयड इट. ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था इट वाज क्वाइट लाइक लॉन्ग टर्म वाला प्रोजेक्ट, जो कि मैंने लाइक 10th 11th 12th तीनों में कंटिन्यू किया था. तो इसलिए आई वाज मेंशनिंग दिस. एंड इसमें अगेन HTML CSS एंड PHP मैंने यूज किया था. एंड ड्यूरिंग द JEE टाइम जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी, तो मैं इसमें एक नया अपडेट पुश कर देता था कि एक नया फीचर बना के पुश कर दिया. फिर अगर मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं फ्रॉम माय 10th क्लास, सो इट वाज लाइक कि CBSE ने लाइक क्लास 10th को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया था. फर्स्ट टर्म वाज टर्म 1 एंड टर्म 2. लाइक आई डोंट नो तुम्हारे साथ था या नहीं, बट मेरे साथ था. हाँ, ठीक आप है, हमसे सीनियर थे ना, तो आपके बैच में तो ऐसे ही हुआ था कि 2 पार्ट्स में लिया गया था परमानेंट. सो या, तो ड्यूरिंग दैट टर्म 1 का उन्होंने लाइक एग्जाम्स ले लिए जो कि MCQ बेस्ड थे OMR पे, एंड उसका वो रिजल्ट रिलीज नहीं कर रहे थे. एग्जाम्स हुए थे ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर स्टार्ट, एंड बच्चे वर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट जैन मिड तक का लॉन्च हो जाएगा, लाइक रिलीज हो जाएगा, बट नहीं हुआ. तो आई थॉट कि लाइक अपनी क्लास के बच्चों को प्रैंक करते हैं. तो व्हाट आई डिड कि लाइक CBSE की जो वेबसाइट है, रिजल्ट वेबसाइट, उसको मैंने क्लोन किया, एग्जैक्टली सेम एक रिजल्ट पोर्टल बनाया. इवन उसका URL भी मैंने मैच किया, CBSE result डॉट मेरा डोमेन /class1010. इट वाज लुकिंग एक्सेप्शनली सिमिलर कि हाँ CBSE की ऑफिशियल रिजल्ट वेबसाइट है. तो आई थॉट कि लाइक मैं अपनी क्लास के बच्चों को प्रैंक करूंगा, तो मैंने बनाया था 20th ऑफ जैन को और रख लिया. फिर मैंने रात को एक अपने दोस्त को शेयर किया जस्ट टू टेस्ट आउट कि इफ इट इज वर्किंग और नॉट, और वो इसमें फंस रहा है या नहीं फंस रहा है.
तो वो फंस गया। देन आई सिंपली स्लेप्ट कि सुबह अपनी क्लास के बच्चों की फाड़ दूंगा और उनके साथ प्रैंक कर दूंगा, तो मैं सो गया। बट जब मैं सुबह उठा तो उस साइट पे पर आवर 10,000 विजिटर्स आ रहे थे। एंड जो मैंने प्रैंक प्लान किया था अपनी क्लास के लिए, बट वो पूरे इंडिया पे प्रैंक हो गया। तो इस चीज का इफेक्ट ये पड़ा, ड्यूरिंग 5 डेज मेरी वेबसाइट पे 2.5 लाख लोग आए थे, एंड जिसमें से 60,000 लोगों ने अपनी डिटेल्स फिल की थी इन दैट फॉर्म विच रिक्वायर्ड योर रोल नंबर, स्कूल आईडी, स्कूल कोड और आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। एंड इसमें ऐसा सीन था कि आप जब ये 3 चीजें भर दोगे एंड सबमिट करोगे तो वेबसाइट विल गोना शो यू कैसा लगा मेरा मजाक मीम। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने प्लान की थी अपनी क्लास के लिए, बट ये प्रैंक हो गया पूरे इंडिया पे। देन मैं सोच रहा था कि सही है, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, ट्रैफिक आ रहा है आने देते हैं। बट आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 50,000 लोग थे। काइंड ऑफ ऑफिशियल ग्रुप ही था वो। तो उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आती है कि अ हैकर इज ट्राइंग टू स्टील योर इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द वेबसाइट यूआरएल, प्लीज बी अवेयर, दिस इज अ फेक टर्म वन रिजल्ट लिंक। एंड वो वेबसाइट का यूआरएल मेरा ही था। तो मेरी फट गई, तो मैंने उसके बाद वेबसाइट डाउन कर दी। बट हाँ, मेरे पास 60 to 65,000 लोगों का डेटा था, जिससे मैं इन फ्यूचर में भी मैं रिजल्ट स्क्रैप कर सकता था सबका। बट यहाँ पे सीबीएसई हैज प्लेड समथिंग वेरी गुड। तो सीबीएसई ने एक नया फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया था उनके रिजल्ट में ड्यूरिंग 2022, विच वाज एडमिट कार्ड आईडी, जो कि 2022 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर करता तो मैं वो भी कलेक्ट कर लेता। बट हाँ, तो इससे मुझे समझ में आया कि चीजें वायरल होना इज इजी, अगर आप कोई यूजफुल या ऐसी चीज बना दे तो विच इज अट्रैक्टिंग समवन। तो या इस इंसिडेंट से मेरी ये लर्निंग थी। फिर उसके बाद तो यूजुअली वही जेई स्टार्ट हो गया एज लाइक ये मेरा खुद का डिसीजन था, ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे थोप दिया। बट हाँ, कि मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट बन गया था, तो आई फेल्ट कि हाँ, इंजीनियर बनना इज द बेस्ट थिंग। तो मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो ड्यूरिंग 11th-12th आई डिड नथिंग एज सच। एंड बस मेरी वो जो एक वेबसाइट थी आई मेंशन कि 10th में बनाई थी, मैं उसको अपडेट करता रहता था, उसमें नए नए फीचर्स डालता रहता था। बट ड्यूरिंग द जेई एंड जब चल रहा था तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था कि कुछ बनाऊं। तो एट दैट टाइम मैं टेलीग्राम से कुछ लोगों से कनेक्ट हुआ था, जिसका नाम था टीम जीटीसी। तो व्हाट दे वर बिल्डिंग वाज कि एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे यू कैन जस्ट एंटर योर जेई रैंक एंड यू कैन सी लाइक योर प्रेडिक्टेड कॉलेज जो तुम्हें तुम्हारी रैंक से मिल सकता है। तो मैंने उस चीज़ पे वर्क किया एंड ऑलमोस्ट उस पर 4 लाख विजिट्स आए थे ड्यूरिंग दैट जेई सीजन। एंड उसके अलावा एक एक मैंने क्रेजी चीज और कर दी थी समहाउ, जैसे एज आई सेड कि मुझे चीजों के साथ खेलना पसंद है। तो मैं 11th में आई वाज पार्ट ऑफ वीएमसी, बट आई लेफ्ट वीएमसी, देन आई जॉइंड पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैच। तो मैं एक दिन उनकी वेबसाइट यूज कर रहा था, अगेन मैं खेल रहा था उसके साथ। तो वहां पे मुझे एक बग मिला। यूजिंग दैट बग मैं उनका कोई भी कोर्स फ्री में एक्सेस कर सकता था। तो आई ट्राई टू रिपोर्ट दैट बग इमीडिएटली जैसे मुझे पता चला था। एज आई कैन रिमेम्बर इट वाज 15th अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। मैं अपनी छत पे बैठ के ईमेल रख रहा था पीडब्ल्यू को, बट पीडब्ल्यू ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उस ईमेल का, ना वो बग फिक्स किया। तो टिल अगस्त से लेके दिसंबर तक का मैंने वो बग को खूब एक्सप्लोइट किया। मैंने उनके सारे कोर्स एक्सप्लोर किए, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, उनका करिकुलम देख लिया कि क्या होता है, कौन टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, कैन आई फाइंड देम ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो ये सब करके देन दिसंबर में समहाउ मुझे एक पीडब्ल्यू एम्प्लॉय की ईमेल मिल गई। देन आई रोट दैट ईमेल अगेन कि आई नो वर्नेबिलिटी ऑन योर वेबसाइट। तो या दिस टाइम उन्होंने वो सीरियसली ले लिया। सो या ऐसा मेरा 11th-12th निकला, देन कॉलेज ज्वाइन करने का टाइम आ गया। सो या
लाइक मैं आज जेई एडवांस का पेपर दे के आ रहा हूँ एंड मेरे पास एक बेसिकली आइडिया था विच आई ऑलवेज not always but yeah during 11th 12th I identified that thing which was कि जो self study libraries if you know exist in Delhi a lot so मैं भी एक लाइब्रेरी जाता था तो आई नोटिस कि वहाँ पे लाइक लोगों को एंट्री एग्जिट करना पड़ता है ऑन रजिस्टर तो आई ट्राई टू डिजिटलाइज इट तो जिस लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था मैंने वहाँ से इनिशिएट किया उस चीज़ को तो प्रोडक्ट बना के उनको बेच दिया दे बाइड इट तो आई थॉट कि पूरी दिल्ली में सब खरीद लेंगे तो मैंने जस्ट लाइक मेरा जे एडवांस आज खत्म हुआ है 6 बजे और मैं कार से घर जा रहा हूँ ड्यूरिंग दैट टाइम ही मैंने देख लिया था कि क्या क्या मैं इन छुट्टियों में सीख सकता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट कर पाऊँ तो या मैंने लाइक चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दी तो आई फील यहाँ पे मैं एक लर्निंग बताना चाहूँगा कि बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज कि तुम एक प्रोजेक्ट या एक टारगेट पकड़ लो एंड सी कि उस चीज़ को बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें सो या आफ्टर डेट कॉलेज स्टार्ट हो गया तो अब कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो कॉलेज वालों ने एक रोल नंबर की लिस्ट निकाली थी तो आई थॉट कि इसको भी डिजिटलाइज कर देते हैं एक वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं क्योंकि मुझे आईओएस पे सर्च करने में बड़ा इशू हुआ था अपना रोल नंबर तो ऐसे मुझे लाइक प्रॉब्लम्स दिखती है तो मैं सॉल्यूशन बना देता हूँ तो मैंने उसका सॉल्यूशन बना के जो ग्रुप्स बनते हैं इनिशियली क्रॉस लिंक्स ये ऑल तो मैंने उसमें शेयर कर दिया तो लाइक उससे इतना क्रेजी ट्रैक्शन आया उस पर लाइक ऑलमोस्ट सबने विजिट करके अपना रोल नंबर देखा एंड मेरे पास डीएम फ्लड हो गया कि भाई तुमने कैसे बनाया क्या सीखा ये सब सो या इनिशियली से ही मुझे बहुत लोग जानने लगे थे कि आई एग्जिस्ट कि कुछ तो बनाता रहता है काइंड ऑफ फिर ड्यूरिंग कॉलेज मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए लाइक एक तो यही था इसको हाजिरी केम इन द पिक्चर तो हाजिरी के बारे में आई वुड लाइक टू टॉक इन डिटेल लाइक सबसे ज़्यादा सीखने को जिस प्रोजेक्ट से मुझे मिला सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन जिस प्रोजेक्ट को मिला एंड सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जिस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे मिली डेट वाज हाजिरी ओनली तो हाजिरी का आइडिया वाज समथिंग कि जो मेरे पास डे वन ऑफ कॉलेज से था क्योंकि एक मेरा दोस्त था जिसने मुझे बताया था इफ यू वांट टू पॉपुलर इन कॉलेज तो यू कैन बिल्ड समथिंग रिलेटेड टू अटेंडेंस विच इज अ क्वाइट कंसर्न इन आवर कॉलेज सो मैंने इनिशियली भी ट्राई किया था बनाने का बट आई फील आई वाजंट दैट कैपेबल टू बिल्ड इनिशियली सो मैंने उस चीज़ को स्क्रैप कर दिया कि कहाँ नहीं 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 बनाते हैं देन आई इट लाइक इट वाज लाइक अ कॉलेज अगस्त में स्टार्ट होता है देन हम मार्च में आ गए तो मार्च में आई गेट टू नो कि सम पीपल आर बिल्डिंग रिजल्ट वो नॉट रिजल्ट इट्स एनएसयूटी ट्रैक सो एनएसयूटी ट्रैक वाले जो लोग थे मैं उनको एक हैकाथॉन में भी मिला था ड्यूरिंग अक्टूबर रेजोनेंस में एक हैकाथॉन हुई थी अक्टूबर में दे वर बिल्डिंग द सेम प्रोडक्ट एट दैट टाइम एंड उस टाइम पे मैंने सोचा था कि दे आर क्रेजी पीपल आईएमएस स्क्रैप कर रहे हैं ये तो मैंने ट्राई किया था मेरे से तो नहीं हुआ था तो 29th ऑफ मार्च थी इट वाज कि आई थॉट कि ट्राई करते हैं एंड उनका प्रोडक्ट 9th ऑफ अप्रैल को लॉन्च होना था तो मैंने 29th ऑफ मार्च को ट्राई किया कि लेट्स सी आईएमएस कैसे काम करता है तो ऑन 29th मैंने पूरा एक्सप्लोर किया एंड आई वाज एबल टू क्रैक इट कि हाँ ये एक्चुअली में कैसे काम करता है 31st को मैंने कोड किया एंड 1st ऑफ अप्रैल को आई लॉन्च हाजिरी
एंड दे टुक अक्टूबर से लेके अप्रैल का टाइम, लाइक आई गेस 6-7 months। एंड वो चीज मैंने 3 दिन में बना के लॉन्च कर दी थी, एंड उस उनकी डेट शेड्यूल थी, इट वाज लाइक इन 9th अप्रैल को ही लॉन्च होगा। तो टिल 9th अप्रैल आई गेन 1000 यूजर्स ऑन हाजरी, एंड ऑन द डे वन इटसेल्फ 400 लोग हाजरी पर रजिस्टर हुए थे। तो हाजरी वाज अ क्वाइट बूमिंग प्रोडक्ट, एंड टिल दैट सेमेस्टर एंड 1600 लोग रजिस्टर्ड ऑन हाजरी। सो या, हाजरी वाज क्रेजी स्टफ फॉर मी, जो कि कम्प्लीटली वायरल था, एंड बहुत लोग की हेल्प हुई उससे, एंड आई गॉट क्वाइट पॉपुलर। देन कॉलेज, लाइक नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, नए लोग आए कॉलेज में, तो इस बार मुझे एक हाजिरी को प्रमोट करना था एट द एंड टू द न्यू स्टूडेंट, बट उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो लाइक मेरे बैच के लोग थे उन्होंने अपने जूनियर्स को बता दिया कि समथिंग एग्जिस्ट लाइक हाजरी। तो हाजरी इतने अच्छे से पेनिट्रेट हुआ था इन योर बैच 2025 कि almost 99% people from your batch are registered on Hajri, and it was like completely word of mouth kind of। ठीक है, लाइक मैंने कभी कुछ प्रमोट नहीं किया, ऑटोमेटिकली इट गॉट प्रमोटेड। तो प्रोडक्ट वाज दैट गुड। सो इससे लाइक काफ़ी मेरी लर्निंग्स थी, एंड एक इंसिडेंट भी हो गया था कि हाजरी बीच में बैन हो गया था। सो आई वॉज यूजिंग अ लूप होल ऑफ व्हाट्सएप टू सेव सम कॉस्ट। तो वो व्हाट्सएप ने डिटेक्ट किया था इन सितंबर, सो व्हाट्सएप जस्ट बैन माय नंबर। उसके बाद आई थॉट कि हाजिरी तो गया ऑन द व्हाट्सएप वाली थिंग, बट हाँ, समहाउ अ पर्सन फ्रॉम योर बैच सेव्ड इट। सो उसकी भी अगर मैं स्टोरी बताऊं तो इट वाज लाइक कि हाजिरी ऐसा हो रहा था कि बैन हो रहा है, फिर मैं नंबर स्विच कर रहा हूँ, फिर चल रहा है, फिर बैन हो रहा है। तो इन बिटवीन डेट एक पर्सन आता है ज्ञान सूत्र के ग्रुप पे एंड लिखता है कि हाजरी न्यू नंबर वर्किंग नाउ एंड हेयर इज द नंबर। मैं उस मैसेज को देखता हूँ एंड आई वाज लाइक कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो चलने कैसे लगा है, और ये मेरा नंबर तो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने देखा, ट्राई किया उसको, एंड इट वाज कंप्लीटली वर्किंग सिमिलर विद सेम नेम विद सेम डीपी। तो मुझे समझ में आया कि समवन हैज क्लोन्ड इट। तो मैंने उस पर्सन को मैसेज करके बोला कि यू शुड चेंज द नेम, लाइक इट्स गुड कि तुमने क्लोन कर दिया, वेल डन, बट हाँ तुम्हें उसका नाम बदल देना चाहिए, डोंट यूज द नेम हाजरी। तो वो थोड़ा डर गया, एट द एंड वो जूनियर था, उसे कभी लगा नहीं था कि मैं सामने से मैसेज कर दूंगा। तो उसने 5 मिनट बाद मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिख के भेजा। मैंने कहा लाइक मैं मैसेज क्या भेज रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन भेज रहा है, ठीक है, बट फिर उसने मुझे मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लाइक हाजिरी अगर लाइक कोई आईएमएस को डिकोड कर रहा है ना, ही इज अ वेरी गुड इंजीनियर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, इट इज दैट कॉम्प्लेक्स। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उससे पूछ लिया कि भाई कि हाउ यू डिड दिस थिंग। सो उसने मुझको बताया कि आप गुस्सा मत करना, मैं बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं करूंगा गुस्सा। तो उसने क्या किया, जो मेरे एक हाजिरी की वेबसाइट की एपीआई एग्जिस्ट कर रही थी, उसको उसने रिवर्स इंजीनियर कर दिया, एंड उसने हाजिरी के ऊपर अपना प्रोडक्ट बना दिया बॉट एंड लॉन्च कर दिया। तो लाइक ठीक है, अच्छी बात है, बट हाँ फिर हमने डिसाइड किया कि हम दोनों कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो आज के टाइम पे हाजिरी इज वर्किंग अपॉन कोलैबोरेशन विद हिम। तो नंबर उसका है, कोड मेरा है काइंड ऑफ, एंड दैट पर्सन इज वैभव अरोड़ा फ्रॉम सीएसई। वैभव मैं नहीं मिला उससे कभी। लाइक ही इज अ क्वाइट ग्रेट पर्सन, लाइक उसको भी हार्डवेयर में काफी इंटरेस्ट है। सो या, सीएससी में है ना? हाँ। गॉट इट गॉट इट। मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बताया था इसके बारे में, ही इज आल्सो वेरी गुड एट हार्डवेयर स्टफ, इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। वगैरह। हाँ हाँ, आई नो। चलो। अरे हाँ यार, भैया आप तो सही बता रहे हो, इंफीरियर लग रहा है कि क्या क्या कर लिया स्कूल टाइम से, इतना सब कुछ। अरे अलग ही लेवल की स्टोरी है। तो फिर अर्निंग भी काफी हो गई होगी आपकी तो। हाँ, तो अब उसी चीज पे आता है। तो ये सेमेस्टर चला, नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे थोड़ा आइडिया आया कि लाइक लेट्स ट्राई टू ऐड अ सब्सक्रिप्शन लेयर टू इट, एज लाइक मुझे सर्वर की कोस्टिंग हैंडल करनी पड़ती थी। तो मैंने लाइक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़्यादा लोग बाय कर लेंगे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ 10-20 लोग विल बाय द सब्सक्रिप्शन, बट हाँ, तो मैंने लाइक हाजिरी पे एक सब्सक्रिप्शन लेयर ऐड करके फ्रॉम माय 4th सेमेस्टर मैंने उसको लॉन्च कर दिया था। एंड
somehow 500 people bought the subscription, and it was costing 20 rupees per month, and 5000 वो 500 के हिसाब से you can calculate 10,000 rupees per month मैं कमा रहा था through हाजरी. So yeah, हाजरी से like काफी impact हुआ and काफी opportunities like सामने से मेरे पास आई. तो it was like कि हाजरी पॉपुलर हो गया था तो मैं भी पॉपुलर हो गया था. तो इट वाज लाइक कि लोग मेरे रेफरल खुद ही लगा रहे थे. तो किसी को कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट कराना है वो डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंड पैसे कमा रहा हूँ. फिर किसी को कोई लाइक न्यू स्टार्टअप है उसे कोई इंटर्न देनी है तो वो किसी मेरे कॉलेज के स्टूडेंट को जानता है लाइक उसका फाउंडर, तो वो डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है, मुझे इंटर्न भी मिल रही है. तो समहाउ हाजिरी से आई गेट अ लॉट ऑफ स्टफ. लाइक अगर मैं इन कंक्लूजन बताऊं तो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी, ठीक है, थोड़ी बहुत भी बहुत पॉपुलैरिटी बोलूंगा, क्योंकि देखो मेरे को पता नहीं था पहले हाजरी के बारे में. मैं एनएसयूटी ट्रैक यूज करता था, बट एनएसयूटी ट्रैक के साथ में बहुत दिक्कत होती थी कि हर बार लॉग आउट हो जाएगा अपने आप, और आपकी टाइमली अटेंडेंस अपडेट नहीं होती थी. तो मैं बोला कि यार मेरी ना, मैं ऐसी ऐप चला रहा था, मैंने बोला यार देख मैं ये यूज करता हूँ, नहीं मैं अपडेट नहीं हो रहा. उस टाइम एसआईएच का टाइम था. तो उसने बोला शशांक तूने हाजरी यूज किया है? मैंने बोला हाजरी क्या है? फिर उसने मेरे को नंबर दिया कि भाई ये वाला नंबर है और ये वाला ऐप है, जरा एक बार इसको यूज करके देख. मैंने बोला यार ये तो बड़ी तगड़ी चीज है, एक बार यूज करके देखते हैं. फिर मैंने पहली बार आपका नाम वहां पढ़ा कि अरे सूचल भैया करके भी कोई है सेकेंड ईयर में जिन्होंने ये सब बिल्ड किया है, एंड नाउ यू आर हियर. मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि प्रिविलेज ही है कि भाई इतनी जल्दी इंटरेक्शन का मौका मिल गया. ये सोया तो मुझे पॉपुलैरिटी मिली, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली सामने से, लाइक मुझे नहीं जाना पड़ा. एट द एंड आई अर्न अ लिटिल बिट मनी फ्रॉम इट. एंड फोर्थ थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि लाइक इसके थ्रू आई गॉट इनटू IIM वेंचर समहाउ. सो या तो लाइक एक IIM वेंचर्स का, IIM अहमदाबाद वेंचर्स का एक प्रोग्राम था विच वाज कॉल्ड AI समर रेजिडेंसी, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन Feb 2026. एंड तो मैंने उसको लाइक रीड किया उसका डिस्क्रिप्शन एंड इट वाज कम्प्लीटली मैचिंग माय प्रोफाइल कि दे नीडेड सम पीपल लाइक जो प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं या हु आर बिल्डर बाय कोर. सो या वो मुझे ऐसा लगा था कि द प्रोग्राम इज कम्प्लीटली मेड फॉर मी, लाइक मेरे जैसे लोगों के लिए या मेरे लिए. तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया. तो इट कंटेन सम 15-16 क्वेश्चन कि तुमने पहला प्रोडक्ट क्या बनाया, लाइक तुम्हारी सबसे बड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी वाली चीज़ क्या थी इन द टेक साइड, ऐसा ऐसा. सो यहाँ 15 क्वेश्चन थे. आई अप्लाइड बट समहाउ ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ओनली मैंने वो आंसर्स इतने अच्छे से लिखे थे कि मुझे इंटरनली पता था कि आई विल गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम. सो या मैंने फॉर्म भर दिया. 1.5 महीने बाद आई गेट एन ईमेल कि लाइक मेरा शॉर्ट लिस्टिंग राउंड वाज क्लियर एंड मेरा इंटरव्यू है. एंड इंटरव्यू में आई शोकेस हाजरी एज दे से मी कि लाइक शोकेस योर बेस्ट प्रोजेक्ट. तो मैंने हाजरी को शोकेस किया एंड ऑलरेडी इस पे इतना सारा अट्रैक्शन था. 2 लाख लोग, 2 लाख बार अटेंडेंस फेच हो चुकी थी ड्यूरिंग द सेमेस्टर. 500 पेड यूजर्स थे, 5000 टोटल यूजर्स थे. सो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था. तो आई फील कि मुझे वो AI समर रेजिडेंसी में जाने का चांस ड्यू टू हाजरी ही मिला था. तो like all credit goes to हाजरी. एक प्रोडक्ट में कितना सारी अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या, मतलब जस्ट क्रेजी. हाजरी भाई, हाजरी आपके लिए तो लकी चार्म है एक तरीके से. Yep, it is. इसके 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 बाद एक प्रोडक्ट और है, उसकी भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बता ही देता हूँ. हाँ बताओ. तो जो रिजल्ट हब लाइक यू ऑल नो कि एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता था पहले से जिसका नाम है रिजल्ट हब DTU.com. ठीक है. तो अब एक दिन मुझे आइडिया है कि वाई DTU, वाई नॉट NSUT. तो व्हाट आई डिड कि मैंने एक डोमेन भी परचेज कर लिया जिसका नाम था resulthub.NSUT.com. एग्जैक्टली मैचिंग, बस वो DTU को NSUT से रिप्लेस किया था. फिर अब एट द एंड DTU की जो वेबसाइट थी वो वाली, उस पर लाइक उन्होंने एड्स लगा दिए थे. एक उसका खराब सा UX था, मुझे ही नहीं पसंद आता था. तो आई थॉट कि मैं इसे भी फिक्स कर दूंगा एंड NSUT के लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी. एट द एंड मैं सब उनके अराउंड ये बिल्ड करता रहता हूँ.
तो मैंने बिल्ड किया एंड मैंने उसके बारे में पोस्ट किया मेंशनिंग रिजल्ट हब DTO2 की लाइक उसका यूएक्स थोड़ा खराब हो गया इसलिए मुझे आइडिया आया था। तो दैट पर्सन जयेश बत्रा लाइक वो 4th ईयर में है, 4th ईयर में एंड करंटली डूइंग लाइक ही इज करंटली इंजीनियर एट सेल्सफोर्स। सो उनको पता नहीं क्यों तो बहुत ज्यादा बुरा लगा, उन्होंने नेक्स्ट डे अपने प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया टू resulthubdelhi.com। ठीक है, फिर ये किया, चलो वेल डन। फिर उसके बाद आई फील लाइक मेरी साइट पे एक अटैक हुआ था, आई डोंट नो किसने किया बट इट वाज लाइक कि 1 घंटे में मेरी वेबसाइट पे 3 मिलियन रिक्वेस्ट आई थी, जिसकी वजह से इवन मेरे सारे प्रोडक्ट डाउन थे क्योंकि एक ही सर्वर वाज मैनेजिंग एवरीथिंग। सो बट हाँ, मैंने डिटेक्ट करके उसको ब्लॉक कर दिया था। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर तो लाइक इन रिस्पॉन्स व्हाट आई डिड कि मैंने DT और IGDTOW का भी डेटा डाल दिया ऑन दैट प्लेटफॉर्म। या तो मतलब मैंने ऐसी हाँ, लड़ाइयाँ बहुत सारी चीजें की है ड्यूरिंग दिस 2 years की जर्नी। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, लाइक हाँ, आई वो हैव तो हेल लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। लॉट ऑफ स्टोरीज, पूरा रोलर कोस्टर राइड है, पीक्स भी है और फिर कभी कुछ ऐसा क्रेजी सा जर्नी है कि थ्रिल आ गया बिल्कुल। 3 मिलियन एक साथ बॉट्स आ गए, वो रिक्वेस्ट आ गई, देन क्रेजी भैया, मतलब स्टोरीज हो तो आपकी जैसी, मजा आ गया। या मतलब हम लोग अभी इतने ले रहे थे और हमने 3 पॉडकास्ट शूट किए। प्रोडक्ट बेस्ड डोमेन में आप ही हो फर्स्ट जिसने हम्म बिल्कुल ही हट के चीजें करी हुई है, लाइक राइट फ्रॉम क्लास 9th 10th। वैसे एक क्वेश्चन यही था कि अब जब आप इतना एक्सपीरियंस हो गया तो अभी भी आप एआई टूल्स का यूज करते हो फॉर बिल्डिंग बेस वगैरह, क्योंकि राइट फ्रॉम स्क्रैच तो कोई कोड नहीं करता। ठीक है। तो लाइक मैं इस चीज पे मेंशन करूंगा कि लाइक इनिशियली लाइक ड्यूरिंग माय 9-10 जब तक कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो उस टाइम पे तो आई डिड रो कोडिंग, बिल्कुल सारी चीजें स्क्रैच से लिखता हूँ। बट हाँ, उसकी वजह से लाइक मेरे पास एक्सपीरियंस था। बट लाइक आई विल सजेस्ट कि अगर किसी को राइट नाउ ऐसे सीन है कि मैं यूज करता हूँ, कंप्लीटली यूज करता हूँ, मैं नहीं लिखता हाथों से कोड। बट हाँ, लाइक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट गेन सम एक्सपीरियंस, डू सम रो कोडिंग एंड जब तुम्हें लगे कि यू आर गुड इनफ कि इस स्टफ में कि तुम खुद बना लेते हो चीजें, देन जस्ट बी अ प्रोडक्ट मैनेजर और मैनेजर काइंड ऑफ कि तुम सिर्फ प्लान क्रिएट करते हो कि तुम्हें क्या टेक स्टैक यूज करना है, तुम्हारा सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा, तुम क्या क्या फीचर्स डालोगे, तुम्हारा यूएक्स कैसा होगा, यूआई कैसा होगा। हैव दीज थिंग्स इन योर कंट्रोल एंड बाकी का जो कोड राइटिंग वाला पार्ट है, यू कैन जस्ट आउटसोर्स दैट थिंग टू कोडिंग एजेंट्स। एंड उसके अलावा आई फील कि जितना तुम एआई यूज करोगे, इट विल जस्ट बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी एंड तुम जल्दी जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉन्च्ड हाजरी इन 3 days। वो इसलिए पॉसिबल था क्योंकि लाइक जो उसमें मुझे चीज़ें पता थी कि एक LLM नहीं कर सकता है, वो चीज़ें मैंने मैनुअली खुद की। ऑन द पैरेलल साइड जो चीज़ें LLM कर सकता था, मैंने वो पैरेलली LLM से कराई। तो एट द एंड LLM हेल्ड मी लाइक अ टीममेट एंड बिल्ड स्टफ विद मी। एंड सेम चीज मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है। तो या मैं 2-3 दिन के अंदर प्रोडक्ट शिप कर देता हूँ। इट इज ड्यू टू पॉसिबल ओनली दीज LLM टूल्स एंड आई फील यू शुड यूज इट, बट विद द थिंग इन माइंड कि यू शुड ऑल्सो नो द बेसिक्स। हम्म। कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना है एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता है कि ये चीज चल कैसे रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर अब इसी मतलब यू आर इनटू पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट डोमेन, अगर किसी को बिल्कुल राइट फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो व्हाट रोड मैप विल यू सजेस्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन टू एंटर दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट फील्ड इन टेक डोमेन? और अगर आप कुछ हार्डवेयर डोमेन का भी बता सको तो आप मोस्ट वेलकम फॉर दैट। फॉर द सॉफ्टवेयर डोमेन मैं बता सकता हूँ, बट आई डोंट हैव एनी नॉलेज विद हार्डवेयर। बट हाँ, करंटली जो मेरी इंटर्न है उससे मैं सीख रहा हूँ ये सारी चीज़ें भी। बट यार, सॉफ्टवेयर के लिए अगर मैं रोड मैप बताऊँ तो फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड, इट्स सिंपल कि लाइक यू शुड फर्स्ट चूज अ ट्रैक कि तुम्हें वेबसाइट बिल्ड करनी है या ऐप बिल्ड करने हैं। ठीक है, अगर तुम ये ट्रैक चूज कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। ये जब ट्रैक चूज हो जाए तो वेब, अगर इफ यू आर फॉलोइंग दैट वेब ट्रैक, तो वेब ट्रैक में 2 टेक्नोलॉजीज कम एंड ऑन द सेम हैंड इन द ऐप ट्रैक
again दो technologies come and those things are front end and back end. ठीक है. अब वेब के लिए यू कैन जस्ट लर्न फॉर फ्रंट एंड की HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए. उसके बाद यू कैन जस्ट मूव टू React.js. देन यू कैन लर्न एनी backend framework. I will suggest ki go with Node.js, but Node.js is for JavaScript. Along with that, Python के exist करते हैं, which is Django, Flask, Fast API. ऐसे ही हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा फॉर जावा, स्प्रिंग बूट एंड समथिंग. तो हैव सम एक्सपीरियंस, लाइक एक कोर एक्सपीरियंस कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट्स के बाद एट द एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट सिंटैक्स, यू कैन जस्ट स्विच. ठीक है. इसके बाद अगर हम ऐप साइड पे स्विच कर जाएं तो ऐप के लिए बैक एंड रिमेन्स द सेम जो इसके लिए था वेब के लिए, बट जो फ्रंट एंड लाइब्रेरीज है दे जस्ट चेंज. So right now the most popular thing I feel like these are Flutter, React Native. So yeah, you can learn these things plus backend to start your journey. Along with that, मैं मेंशन करूंगा कि लाइक ये थोड़ा पुराना हो गया काइंड ऑफ कि हाँ 1-2 साल तक का चल जाता है. इसके बाद भी यू कैन लर्न अ न्यू लेयर टू इट. वो है कि एक LLM API या LangChain LangGraph, ये चीजें तुम सीख सकते हो कि तुम AI इनबिल्ट कर पाओ इन योर प्रोडक्ट एट द एंड. तो इफ यू सी मैंने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर एट द एंड AI इंटीग्रेट किया है एज ऑफ नाउ. तो या दिस थर्ड थिंग यू शुड ऑल्सो लर्न. तो भैया अब आप इतना सब कुछ आप करते थे तो डू यू एक्चुअली एंजॉयड योर कॉलेज लाइफ? कि अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करते करते एज अ नर्ड कि भाई मैं सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, एंजॉय नहीं किया कुछ कॉलेज लाइफ? नहीं, ऐसा तो नहीं है. द प्रोडक्ट बिल्डिंग थिंग इज माय हॉबी काइंड ऑफ. तो मेरे पास ज़्यादा हॉबीज नहीं है कि लाइक मैं ड्राइंग करता हूँ, ये सब करता हूँ, बट हाँ मेरी एक ही हॉबी है कि प्रोडक्ट बिल्डिंग. तो प्रोडक्ट बिल्डिंग वाज जस्ट हॉबी कि जब मैं खाली बैठा हूँ या मेरे दिमाग में कुछ आइडिया हिट कर गया, ऐसा नहीं है मैं 18 घंटे कोड करता था. बट हाँ मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय की, मैंने हर फेस्ट अटेंड किया, हर इवेंट अटेंड किया. इवन आई जॉइंड सोसाइटीज लाइक GDSC या GDG में आई एम द मोस्ट एक्टिव पर्सन आई फील. मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किए एंड इवेंट संभाले हैं, इवेंट्स की वेबसाइट बनाई है. एट दिन 400 है हमारे इवेंट्स में यार. उसके अलावा ट्रिप्स, फ्रेंड्स के साथ घूमना, कॉलेज में घूमना, मैंने सब चीज की है काइंड ऑफ. हाँ, तो मतलब किया जा सकता है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग वेरी प्रोडक्टिव सो यू नीड नॉट टू बी बिल्कुल नर्ड कि भाई मैं एक जगह बैठ के सिर्फ दिन भर काम ही काम कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी सब चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर तुम अपनी इंटरेस्ट की चीज कर रहे हो तो एट द एंड जो तुम काम कर रहे हो तुम्हें काम जैसा कभी फील नहीं होगा. अलोंग विद दैट इफ यू आर गुड इनफ यू कैन जस्ट मैनेज टाइम उसके साथ भी. चलो, moving to our next question. What is a mistake you made early that saved your years later, or something students can avoid if they hear it today? ठीक है. तो लाइक मैं बता देता हूँ करंट सिनेरियो कैसा चल रहा है. तो करंट सिनेरियो इज कि इंटर्न सीजन इज गोइंग ऑन इन आवर कॉलेज. ठीक है. तो अगर आपको कॉलेज से इंटर्न चाहिए, ऑन कैंपस इंटर्न, तो आपको 2 चीज सीखने की जरूरत है. नहीं, 2 चीज सीखने की नहीं, 2 चीज रिक्वायर्ड है. फर्स्ट थिंग इज CGPA, सेकेंड थिंग इज DSA. ये मुझे डे 1 से पता था, बट एट द एंड मेरे दोनों चीज में ही कभी इंटरेस्ट नहीं था. सो ड्यू टू दैट थिंग मैंने उन्हें 2 साल अवॉइड किया, पूरा अवॉइड किया. टिल डेट भी आई एम जस्ट अवॉइडिंग देम. बट या तो आई विल सजेस्ट कि इफ यू आर फोकसिंग कि तुम्हें कॉलेज से कुछ आउटकम चाहिए. देखो मैं अपनी सिचुएशन बताऊं तो आई कैन गेट समथिंग ऑफ कैंपस एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट. बट if you want some assurity, so just don't follow a track like me, but you can just learn DSA and focus upon your CG is the most important thing. जो कि लाइक मैं राइट नाउ फोमो फील करता रहता हूँ कि ओ शेट मेरे साइड वाले की इंटर्न लग गई MNC में, मेरी नहीं लगी है. बट या on the other side I am enjoying some, like I have stories to tell, they don't have stories to tell. और या मतलब
लाइक पहली बार मैंने किसी को ऐसे देखा है बोलते हुए टेक वाला बंदा जो टेक में इतना ज्यादा इंडल्ज है, वो कह रहे डीएसए मत कर। नहीं तो आई एम नॉट सेइंग कि डीएसए मत करो। मतलब डीएसए आपने खुद नहीं किया एंड यू आर डूइंग सच अ लॉट ऑफ थिंग्स। मींस डीएसए मैं जनरली देखा है टेक में अगर कोई बंदा है चाहे सीएस की ब्रांचेस में, वो दिन भर उनका लिंक्डइन पे भी एक ही चीज आती है, लीड कोड में 50 क्वेश्चन सॉल्व, 100 क्वेश्चन सॉल्व डीएसए के। एंड दैट creates a lot of FOMO among all the students, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, rather than not doing something productive. Productive in the sense I won't compare कि डीएसए करना productive नहीं है, but something meaningful जो मेरे को लगता है कि लीड कोड पे वही क्वेश्चंस सब कर रहे हैं, वही सेम प्रोसीजर है। सो इट्स लाइक जो मेरे वाला पाथ था वो लेस देन 1% फॉलोज इन द कॉलेज एंड 99% पीपल जस्ट फोकस ऑन कि हाँ हैव अ गुड सीजी एंड हैव अ गुड डीएसए एंड विच एक्चुअली वर्क्स। अगर तुम उस चीज में भी ठीक हो तो अकॉर्डिंग टू मी बी इन द टॉप 1% ऑफ एनीथिंग यू आर डूइंग। अब चाहे वो तुम डेवलपमेंट साइड कर रहे हो, चाहे तुम डीएसए में कर रहे हो, चाहे तुम सीजी में कर रहे हो, तो यू विल ऑलवेज सक्सीड। वैसे भैया अभी आप इंटर्न कहाँ कर रहे हो फिलहाल? So, like at the end, it's a still startup. So currently in prototype stage. तो as such उसको नाम नहीं है, but I can mention कि हमारी कॉलेज के सीनियर है 2015 बैच के, and he started it and it's a mixture of software plus hardware thing. तो हाँ मैं I am building the software but I am also getting the knowledge of hardware there. हार्डवेयर में किस डोमेन में आप अभी काम कर, मतलब वहाँ पे काम चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत आप बता सको। सो इट्स लाइक उनका एक डिवाइस ESP32 है, उस पे कैमरा माइक्रोफोन ये सब कनेक्टेड एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ स्मार्ट लैम्प काइंड ऑफ which have camera and microphone and which can answer your queries and doubts. आई गेस इतना तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस, मतलब हम लोग खुद ही, मैं आई एम इनटू हार्डवेयर, कंप्लीटली हार्डवेयर, आई एम डूइंग हार्डवेयर सिंस क्लास 9। एंड मेरे को हार्डवेयर बहुत फैसिनेट करता है। सॉफ्टवेयर में ना वही है कि मैंने जो चीजें देखी है वो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन के आगे दिन भर आदमी कोड कर रहा है, एंड वो चीज मेरे को आज तक फैसिनेट नहीं करी। आपके बाद सब आपसे जो आज हमने डिस्कशन हुआ पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला, अब मेरे को फैसिनेटिंग लग रहा है कि यस टेक डोमेन में भी कुछ अच्छा किया जा सकता है एक्चुअली। आई फील एवरी डोमेन इज फैसिनेटिंग अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो यार लाइक मुझे भी हार्डवेयर वाली चीज़ें अच्छी लगती है। यू हैव समथिंग फिजिकल इन योर हैंड, उसके साथ तुम खेल सकते हो, लाइक बिल्ड समथिंग, लाइक कार बना लो, कुछ भी बना लो। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही है, जो तुम्हारे दिमाग में आइडिया है जस्ट बिल्ड इट एंड अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे यू हैव सम यूजर्स तो वो तुम्हें एक खुद ही एक डोपामिन हिट एंड एक पुश देता है। जस्ट लाइक मेरे साथ है, मेरे पास हाजिरी पे 2000 लोग डेली यूज करते हैं, तो आई कीप ऑन मेंटेनिंग इट। तो हैव समथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ, आई विल सजेस्ट। लेट्स मूव टू आवर थर्ड राउंड, दैट इज डीप डाइव राउंड। So, what if your laptop was reset today and you had to start from scratch, like zero followers, कोई नहीं जानता who is Sujal, आपका GitHub पे 0 stars हो चुके हैं, nothing, कुछ भी आपके पास नहीं है। So, how would the roadmap look like? Again, same चीज। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा रहूंगा। आई लव माई लैपटॉप अलॉट। ठीक है, उसके बाद अगर होता है तो ठीक है, लाइक मैं डरूंगा नहीं बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द स्टफ। सो आई विल से कि मैं पहले डीएसए करना चाहूंगा। क्वाइट लाइक ऐसा कि जो नहीं करता हूँ मैं, बट हाँ। सो द थिंग इज डीएसए इज थ्योरेटिकल। अगर आप उस चीज को पहले कर लोगे तो इट्स लाइक कि हाँ आपने थ्योरी कर ली है एंड उससे बोर आउट भी हो गए, इट डजेंट मैटर। बट इफ यू गो ऑन द प्रोडक्ट साइड फर्स्ट, उसके बाद यू कांट डू डीएसए। सो सपोज एक स्टूडेंट है, अभी फ्रेशर्स का सीजन है, अब फ्रेशर्स आने वाले हैं एंड ही वांट टू गेट इनटू टेक। So what roadmap would you suggest to
him or her such that उसके आने वाला फर्स्ट ईयर काफी प्रोडक्टिव निकल जाए एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही विल बी सेटिस्फाइड कि यस मोर देन कॉलेज करिकुलम या जो भी कॉलेज में हो रहा है उससे मैंने कुछ तो अच्छा ही किया. ओके श्योर. तो लाइक मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें ना लाइक बहुत सारे पाथवेज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंड गोल ऑफ द स्टूडेंट. इफ स्टूडेंट का एंड गोल इज टू गेट अ गुड प्लेसमेंट फ्रॉम कॉलेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द डेवलपमेंट वाला साइड या प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला साइड, यू शुड फोकस अपॉन डीएसए फर्स्ट. एज अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पहले कर लेते हो तो डीएसए आपको कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. So do DSA, have a good CG. These two things will help you a lot to get on-campus internship, on-campus placement. But on the other hand, if you have some chull in your life कि तुम्हें अपनी जिंदगी टफ बनानी है, एक सिंपल पाथ फॉलो नहीं करना है, तो तुम ये दोनों चीजें स्किप कर सकते हो. उसके बाद तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट एट द एंड थिंग्स विल बी नॉर्मल. एक क्वेश्चन और कि इसी से रिलेटेड कि कॉलेज का करिकुलम सिंस यू हैव ऑलरेडी फेस्ड फर्स्ट और सेकेंड ईयर सीएसएआई का करिकुलम जो आप कॉलेज में फॉलो हो रहे हैं उसका आपके जर्नी में कितना परसेंट इम्पैक्ट आया है. ठीक है, तो मैं अपना कॉलेज के करिकुलम के बारे में बता देता हूँ. आई डोंट नो लोग इससे एग्री करेंगे या नहीं, बट फॉर मी इट्स लाइक मैं सिर्फ थोड़ी बहुत सीजीपीए एंड पास होने के लिए उसको पढ़ता हूँ जस्ट अ डे बिफोर द एग्जाम. मैं उसको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा, बट हाँ इसमें ऐसा होता है कि मैं एक दिन या 2 दिन पहले सब कुछ पढ़ लेता हूँ एंड एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम में उसकी उल्टी कर देता हूँ एंड पेपर पे लिख देता हूँ, मेरे मार्क्स आ जाते हैं एंड देन मैं भूल जाता हूँ उसको. तो आई फील 10% कंट्रीब्यूशन मान सकते हो, उससे ज्यादा तो कॉलेज कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. कॉलेज का करिकुलम, कॉलेज था एट द एंड कंट्रीब्यूटिंग समथिंग. 3 पॉडकास्ट हो चुके हैं, तीनों में सेम रिस्पॉन्स था, तीनों में एग्जैक्टली सेम रिस्पॉन्स है. 10% से ज्यादा जेन्युइनली कॉलेज करिकुलम ने कहीं हेल्प नहीं किया किसी को भी. एंड अगर मैं ऐसी सीएसएआई की बात करूँ, सब्जेक्ट का नाम तुम्हें फैसिनेटिंग लगेगा ना, सब्जेक्ट का करिकुलम तुम्हें फैसिनेटिंग लगेगा जब तुम्हें वो सब्जेक्ट मिल जाएगा, एंड एट द एंड वो टीचर का पढ़ाने का स्टाइल भी तुम्हें फैसिनेटिंग नहीं लगेगा. तो एट द एंड तुम्हें बड़ी मुश्किलों से हट के वो चीज करनी पड़ेगी, बट इन जर्नल अगर तुम खुद वो चीज करने जाओगे, मे बी इट कैन बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो मशीन लर्निंग या लाइक फॉर मी लाइक लर्निंग इज नॉट लाइक कि तुम मुझे कोई एग्जाम से जज करे फिर. तो लाइक मैं चीजें कर लेता हूँ, बट ये एग्जाम में क्या है कि आपको एक फिक्स चीज रटनी पड़ेगी, वो फिक्स चीज पेपर में लिखनी पड़ेगी, देन आपको मार्क्स मिलेंगे. वो थोड़ा एक डाउन साइड है कि एक डिग्री लेके या कॉलेज लेके पढ़ने का, इंस्टेड ऑफ कि तुम खुद चीजें करो. तो अब जब आगे आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला पूरा एरिया चूज ही कर लिया काम करने के लिए, सो जो पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन एक सबसे बड़ा एरिया होता है जहाँ पे लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई हम करना चाहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं बट मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं. तो एक पर्सन को अगर करेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना है, करेक्ट ट्रैक ढूंढना है कि जिसको मैं फॉलो कर जिसके ऊपर मैं काम करूं एंड उसके थ्रू इम्पैक्ट करूं, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसे आप हैंडल करते हो. ठीक है, तो इसमें लाइक मैं 2 पार्ट से बता सकता हूँ कि एक तो यू आर बिल्डिंग नॉर्मल प्रोजेक्ट्स की जिसमें तो लाइक हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स या सम यूजर्स आर यूजिंग इट, एंड सेकेंडली इफ यू वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप आउट ऑफ इट, तो फॉर द स्मॉलर थिंग्स जिसमें लाइक ज़्यादा यूजर्स नहीं आएंगे बट हाँ यू नो कि इट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम, तो उसमें क्या है कि स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि जिस तुम एनवायरनमेंट में हो क्या लोग बात करते हैं, क्या उनको इश्यूज होता है, एंड 3-4 लोगों से इफ यू हैव अ कन्वर्सेशन तो तुम्हें कुछ कुछ कॉमन चीजें मिलने लग जाएंगी फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड गैदर दीज कॉमन थिंग्स और उस पर सोचो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, एंड यू कैन फाइंड अ मीनिंगफुल थिंग आउट ऑफ इट. जस्ट लाइक हमारे कॉलेज में घुसते ही मुझे पता चल गया था कि एक अटेंडेंस नाम की चीज है जिसका बहुत इशू है चेक वेक करने का. तो या मुझे ऐसा मिल गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसमें मैंने हाजिरी बना दिया. एंड अगर तुम दूसरी साइड से देखो तो वो मुझे भी नहीं पता थी, बट एट द एंड IIM अहमदाबाद हेल्प मी अ लॉट.
So that AI summer residency program was completely focused upon कि how to build a startup from scratch. तो उनका जो week 1 था उसमें again जैसे मैंने बताया कि have some conversations, तो उसमें भी समथिंग सिमिलर. दे प्लान्ड सम सेशंस फ्रॉम द सेक्टर एक्सपर्ट्स. सो इट वाज लाइक कि हर एक लाइक 5 सेक्टर्स दे हैव आइडेंटिफाइड कि जहाँ पे दे इट विल बूम इन इंडिया. सो वहाँ से दे कॉल सम सेक्टर एक्सपर्ट जिनको उनके बारे में नॉलेज है, एंड वीक 1 पे उन्होंने हमें ऐसी कंप्लीट नॉलेज दी अबाउट कि क्या क्या गैप पॉसिबल हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ें चल रही है राइट नाउ मार्केट में. एंड जो वीक 2 था, it was like कि identify your problem. So problem identification में it's like कि first of all you have to do a market research. ठीक है, लाइक जो लाइक सबसे पहले तो नॉट मार्केट रिसर्च, इट्स लाइक कि चूज अ सेक्टर कि तुम्हें किस सेक्टर के अंदर काम करने में इंटरेस्ट आता है, जस्ट लाइक स्पेस सेक्टर या मेड टेक या फिर एंटरप्राइज एआई और समथिंग या एजुकेशन, कुछ भी लाइक वो पॉसिबल हो सकता है. तो चूज अ सेक्टर एंड सी कि उसका मार्केट पहले कितना बड़ा है, देन सी कि उसके अंदर क्या क्या गैप पॉसिबल है. तो उसके लिए तुम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स क्या सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या चीजें छोड़ रहे हैं, वो छोड़ने वाली चीजों में कितना बड़ा मार्केट गैप है, तुम क्या उस मार्केट गैप के अंदर कुछ बना सकते हो. इफ यस तो आइडेंटिफाई समथिंग. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम्हें कोई चीज प्रॉब्लम लगती है तो वो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम होगी. तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर तुम्हें लाइक प्रॉब्लम ढूंढना ज्यादा टफ नहीं होता है, वो तुम्हें मिल जाएगी, बट एक अच्छी प्रॉब्लम ढूंढना इज टफ. ठीक है, जब तुम्हें एक प्रॉब्लम मिल जाए देन यू शुड फॉलो अ पार्ट टू वैलिडेट इट. सो फॉर वैलिडेशन सबसे पहला स्टेप होगा कि तुम मार्केट वैलिडेट करो कि हाँ एक्चुअली में कुछ एग्जिस्ट करता है. देन गो टू सेक्टर एक्सपर्ट्स, जिनको सेक्टर के बारे में नॉलेज है, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ और उनसे एक्चुअली में पूछो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो एक्चुअली में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है नहीं करती है. तो सबसे बड़ी चीज यही है कि लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जो उनको प्रॉब्लम लग रही है वो सही में प्रॉब्लम होगी, पूरी दुनिया वही फेस करती है, बट एट द एंड जब उस पर प्रोडक्ट बनाते हैं वो चलता नहीं है तो उन्हें बहुत रिग्रेट होता है. तो इस चीज से बचने का बेस्ट वे इज टू वैलिडेट योर प्रॉब्लम. इसमें तुम 100 लोगों से, लाइक हमें तो बोला था तुम्हें 100 लोगों से बात करनी है, एंड कॉल करो, ईमेल करो, कुछ भी करो, बट हैव इनसाइट फ्रॉम द इंडस्ट्री. एंड जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम वैलिडेटेड है कि हाँ इस पे कुछ भी बनाएंगे वो चल जाएगा, सब यही कह रहे हैं, सबके कॉमन पॉइंट्स हैं, तुम उसमें सारे इश्यूज रेक्टिफाई कर लो, सारी चीजें कर लो, देन स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोडक्ट. उससे पहले सॉल्यूशन के बारे में सोचना नहीं है. द बिगेस्ट थिंग इज प्रॉब्लम ओनली. अगर तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लोगे ढंग से तो सॉल्यूशन बिल्ड करना टफ नहीं है. उसके लिए तुम्हारे साथ लोग भी आ जाएंगे, तुम किसी को हायर भी कर लोगे, बट दैट प्रॉब्लम फाइंडिंग इज टफ. इट इज एक्चुअली टफ. तो मेनली दो पॉइंट ही मेरे को लगा कि मार्केट वैलिडेट करना और सेक्टर एक्सपर्ट से पूछना, और जो एक्चुअल वो प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हैं उनसे कॉन्वर्सेशन करके आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी हमें चूज करनी है उसको वैलिडेट कर सकते हो कि वेदर इट्स परफेक्ट और नॉट. यस, एंड वैलिडेशन बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है. लाइक उसके अलावा तुम शायद अपना टाइम ही वेस्ट कर दोगे या 2-3 साल लगा दोगे एंड एट दिन चीज नहीं चलेगी. Truly, because like we had one subject, मैंने 10th में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, that was EMDD, हमारे में entrepreneurship mindset with design using digital tools. तो उसमें एक पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस पढ़ाई जाती थी. आपकी थी इंक्वायरिंग एंड एनालाइजिंग, जो सबसे पहली स्टेज. फिर थी डेवलपिंग आइडियाज, फिर हम आइडियाज लिस्ट करते हैं. थर्ड में ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ब्रेन वॉकिंग, एंड देन उसके बाद क्रिएटिंग द सोल्यूशन. और फिफ्थ आपका आता था जिसमें आप फीडबैक लेते थे कि आपने सोल्यूशन बना दिया, फिर उससे फीडबैक लिया एंड देन फिर चेंजेस करके अगेन यू वेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. हाँ, इट्स लाइक अगर अब तुम प्रोडक्ट बना देते हो उसके बाद यू लॉन्च अ प्रोडक्ट, तो सबसे बड़ी चीज है कि गेट कनेक्शंस विद योर कस्टमर्स.
Hmm. तो लाइक कस्टमर से तुम पूछो कि उनको क्या फीचर चाहिए, उनको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ नहीं पसंद आई, एंड हैव दीज फीडबैक्स रेगुलरली। एंड अगर तुम ये नोटिस करते हो कि 100 लोग एक ही फीचर को डिमांड कर रहे हैं, बिल्ड दैट फीचर, डू सम एक्सपेरिमेंट्स, कि जो लोग बोल रहे हैं बनाओ, चलाओ। एंड मे बी ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। नेगेटिव वाली चीज़ों को साइड कर दो एंड पॉजिटिव वाली चीज़ों पे डबल डाउन करो, डबल डाउन करो, उसको और इम्प्रूव करो। तो यू विल फाइंड योर पाथ विद योर जर्नी, एंड तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसी डायरेक्शन में जाएगा कि वो इवेंचुअली यूजर्स गेन करने लग जाएगा। ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स की यही जर्नी होती है कि वो अपने यूजर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड हैव सम फीडबैक्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग फीचर्स एंड एक्सपेरिमेंट्स काइंड ऑफ। मतलब परफेक्टली हाईलाइट हम कर सके कि कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे मूव ऑन करना है। सो ये है कि अगर कोई बिल्कुल ऐसा है ना जो कि बिल्कुल बिगिनर है और उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर घुसना है, तो ये पॉडकास्ट उसके लिए तो भाई गॉड की तरह फायदा करेगा कि इतनी सब कुछ चीजें बता दी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट राउंड, दैट इज रैपिड फायर राउंड। ठीक है। सो very first question, one app on your phone you wish you had built. व्हाट्स WhatsApp, okay. हाँ फिर तो क्या ही मस्त वो था, हर जगह WhatsApp by सूजन चौधरी, कितना क्रेजी हो जाता। सो या लाइक आई एम क्वाइट फैसिनेटिंग बाय मेटा कि मेटा के पास लाइक ऑलमोस्ट मेटा इज टारगेटिंग ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑडियंस currently present in this world, like young audience by Instagram, older audience by Facebook, and WhatsApp पे तो at the end almost everyone just exists, and eventually उन्होंने सारी चीज़ acquire की है rather than building from scratch. So our next question, one technology trend you think is overhyped. सबको पता है at the end AI is overhyped. It is a bubble as of now, but yeah, eventually it will not. Which AI tool सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, किसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है आपने? लाइक मेरे पास क्लाउड मैक्स का सब्सक्रिप्शन है, एट द एंड मेरी इंटर्न से मिला है मुझको। उसके अलावा मैं वही यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट। उसके अलावा आई हैव कीरो बाय अमेजोन, सो उसके मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। अदर देन दैट आई एम ए वेंचर्स हेल्प मी टू गेन $5,000 के क्रेडिट्स ऑन AWS एंड $1,500 के क्रेडिट्स ऑन क्लाउड। तो या मैं इन चीज़ों के साथ ही एक्सप्लोर करता रहता हूँ। एट द एंड आई यूज एवरीथिंग, चैट जीपीटी, जेमिनाई, बट फॉर डिफरेंट यूज केसेस। So ये IIM अहमदाबाद वेंचर्स वाले, ये स्पॉन्सर्ड था उनकी तरफ से सब कुछ? Yeah, the program was completely sponsored by them. Our third question, AI is replacing developers, yes or no? No. If you are a good developer, तो AI can't replace you. At the end, AI इतनी भी strong नहीं हुई है. If a company have millions of users, तो वो उसका complete flow एक AI के हाथ में hand over कर दे, तो it is not possible till date, and it will not. And at the end ये हो सकता है कि companies will require less developers, जो कि AI को एज अ लेबर मान के उससे कोड लिखवाएं या ये सब करे, बट या रिप्लेस तो नहीं कर सकते टिल नेक्स्ट 10 years। आई फील लाइक टिल AI एक ट्रस्ट बिल्ड ना कर दे कि इट कैन हैंडल प्रोडक्शन लेवल एप्स, कि वो कभी क्रैश ना करे, टिल डेट AI कांट रिप्लेस ह्यूमंस और डेवलपर्स। वैसे वुड यू लाइक टू मेंशन एनी यूट्यूब चैनल जिससे आपने मतलब काफी सारी चीजें सीखी हो? ठीक है, तो मैं यूट्यूब चैनल अगर मेंशन करूँ तो फ्रॉम द वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट आई ऑलवेज गो टू हितेश चौधरी, एंड उनके दो चैनल एग्जिस्ट करते हैं। एक तो उनके नाम से हितेश चौधरी, एंड सेकेंड चैनल इज चाय और कोड, यही यस यही नाम है। उसके अलावा फॉर AI अपडेट्स आई यूज फायरशिप, लाइक उसकी वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। एंड उसके अलावा लिटिल बिट ऑफ मोर रिसोर्सेज, आई विल लाइक
give you, you can just mention in like description. डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जरूर. Moving to next question. One startup founder you had loved to have a coffee with. ये टफ था. A lot, like मैं तो सबके साथ करना चाहूंगा. एट द एंड उनसे लाइक सीखने को बहुत मिलता है. लाइक इफ आई मेंशन किया IIM वेंचर्स में, लाइक दे लेट अस टॉक टू रेंडर का फाउंडर, मेम जीरो का फाउंडर, एंड अ लॉट ऑफ की लाइक किराना कार्ट, इट वाज लेंडिंग कार्ट, एंड अ लॉट ऑफ फाउंडर्स. सो आई फेल्ट कि उनकी जर्नी से जो जो चीजें सीखने को मिलती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं तो सबके साथ कॉफी पे जाना चाहूंगा, अच्छा कितना भी खर्चा हो जाए मेरा. But not one specific. Like I feel Perplexity's founder की journey भी was quite great. He interned at ChatGPT, like not ChatGPT, OpenAI. Then वहाँ से निकल के he built his own stuff named Perplexity. And then फिर दो मतलब आई जनरली फील कि परप्लेक्सिटी के रिसर्च अगर हम लोग जैसे शुरू में एमएन्स वगैरह जाते थे तो परप्लेक्सिटी रिसर्च अच्छी करता है बट जीपीटी कंटेंट को फॉर्मेट अच्छा करता है. या लाइक ये मैं लास्ट में बता सकता हूँ कि कौन सी चीज किस चीज के लिए यूज कर सकता है. ये लास्ट में कर लो. वन टेक्नोलॉजी एवरी स्टूडेंट शुड लर्न इन 2026. This how to use AI is the most important thing you should learn. Like at the end AI can do a lot of stuff, but the thing is कि तुम्हें ही नहीं पता है इसको यूज कैसे करते हैं, कौन से टूल किस चीज के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी स्किल मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ठीक है, एट द एंड AI नोज अ लॉट, बट तुम्हें भी पता होना चाहिए कि उससे वो चीज निकालनी कैसे है. तो इसके लिए की सबसे बड़ी चीज है कि गिव एज मच एज कंटेक्स्ट यू कैन गिव टू अ LLM. जितना उसके पास कंटेक्स्ट होगा वो उतना बेटर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग स्मॉल स्मॉल मैसेजेस. अगर तुम्हें कोई ऐसे समराइज कराना है तो सेंड दैट ऐसे, या किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो से यूज वेब सर्च. तो जितना तुम उसे कंटेक्स्ट दोगे LLM उतना बेटर तुम्हें रिस्पॉन्स देगा. सो दिस इज द की थिंग. एंड अदर देन दैट कि बहुत सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में. जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो फॉर रिसर्च आई यूज परप्लेक्सिटी, फॉर स्टडिंग आई यूज जेमिनाई या चैट जीपीटी, एंड फॉर कोडिंग आई ऑलवेज यूज क्लाउड, एंड फॉर वीडियो जनरेशन और for that thing like Gemini always works. And for post writing I would like to mention use Claude. वो कभी डिटेक्ट ही नहीं होता है कि you have written a post using AI. ओह. नियति को बोलूंगा मेक श्योर करें नेक्स्ट टाइम से पोस्ट की डिस्क्रिप्शन मेंशन करने के लिए क्लाउड से लिखवा लेंगे. चलो. बाकी भैया आपका अब आगे का क्या प्लान है आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स? वुड यू गो फॉर मास्टर्स और डायरेक्टली वर्क इन स्टार्टअप और अ कंपनी? So yeah, my first preference will be like मैं यही बोलना चाहूंगा कि अब मैं किसी डिग्री के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ. एट द एंड वो मुझे एक बर्डन की तरह ही फील होती है, क्योंकि लाइक टिल डेट हमारा इंडियन एजुकेशन इज लाइक दैट कि जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो मैंने कभी पढ़ाई नहीं है. एंड आई एम 20 राइट नाउ, एंड आई गेस पता नहीं कितने साल से मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर मैंने कॉलेज भी करा है. तो उस चीज़ ने मुझे हमेशा बाउंड किया है ऐसी चीज़ करने के लिए जिसमें मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ. ठीक है, तो इसलिए मैं कोई डिग्री की तरफ तो नहीं जाऊंगा, बट या आई वुड लाइक टू वर्क इन अ स्टार्टअप लाइक जो कि अर्ली स्टेज में हो या हैव गेन्ड सम यूजर्स. एंड सेकंड प्रेफरेंस विल बी MNC. फर्स्ट प्रेफरेंस एंड स्टार्टअप ही है. एंड आफ्टर दिस like gaining some experience like 3-4 साल will try to build my own product and be an entrepreneur. यो क्रेजी. फिर आप भी शार्क टैंक पे आओगे. क्रेजी फंडिंग. Yeah, शायद. Moving to our the last and the flagship round of Kalpana se Vastavikta tak, that is Kalpana versus Vastavikta. Means I will be telling you a statement, ठीक है?
and you have to tell whether it's a kalpana, means is it just imagination or vastavikta or a reality. Okay. Cracking JEE guarantees success. Kalpana. I need funding before I can build something meaningful. Kalpana. And I need to know everything before I start. Kalpana. अब इनके लिए एक एक स्टेटमेंट आप बताना चाहो why it is just कल्पना and how do you relate it with your own life. ठीक है, तो मैं मेंशन करूंगा सबसे पहले जेई का। तो जेई विल बी हेल्पफुल फॉर योर जर्नी टू हैव अ ग्रेट करियर अहेड, बट वो सक्सेस तो बिल्कुल गारंटी नहीं करता है। अगर तुम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्ड वर्क करना छोड़ दोगे तो एट द एंड यू विल रीच एट द बॉटम। लाइक पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अब वो चाहे जेई क्लियर करके कर रहे हो या विदाउट जेई कर रहे हो, तो you have to match them or beat them to like be in the top। तो मेरी एक like personal thinking है या एक thought है कि be in the top 1% of anything you are doing, you will succeed in your life। एंड फंडिंग वाली चीज पे थोड़ा हाईलाइट करना चाहो। तो फंडिंग के लिए इफ यू सी द हेल लॉट ऑफ स्टार्टअप एग्जिस्ट जो कि सिर्फ बूस्ट्रैप है। सबसे बड़ा अगर मैं नाम लेना चाहूँ फ्रॉम इंडिया, इट्स जीरोधा। Zerodha till date haven't gained any funding and they are doing great। So funding depends upon कि तुम किस मार्केट में काम करते हो, तुम्हें वो मार्केट बनानी है, वो मार्केट पहले से एग्जिस्ट करती है, तुम क्या प्रॉफिट मार्जिन्स क्रिएट कर सकते हो। तो या विदाउट फंडिंग यू कैन स्टार्ट विद योर सेल्फ एंड हैव सम पीपल जो तुम पे ट्रस्ट करते हैं, जो तुम्हारे लिए फ्री में भी काम करने को स्टार्ट हो जाए। So yeah, funding is not required. You can start with your own money or own will. And And the last one was I need to know everything before I start. ऐसा कुछ नहीं है, तुम लाइक कर ही नहीं सकते हो कि तुम स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें जान लो। एट द एंड तुम जब स्टार्ट कर लोगे उसके बाद तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी आइडेंटिफाई होंगी जो तुम कभी सोच ही नहीं पाते विदाउट स्टार्टिंग कि ऐसा कुछ हो भी सकता था। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो हाजिरी में इनिशियली बस एक अटेंडेंस फेचिंग का फीचर था, बट विद टाइम आई एडेड अ लॉट ऑफ स्टफ टू इट कि वो नोटिस भी फेच कर पाता है, योर रिजल्ट्स, फिर लाइक एट द एंड लाइक इवन आई कनेक्टेड योर कोडिंग प्रोफाइल्स टू इट। या तो विद टाइम तुम्हें जब चीजें दिखेंगी तो तुम उनसे सीख के यू कैन डू स्टफ। I hope you guys enjoyed watching this episode. Like too many insights, you have seen a roller coaster ride journey. Right, ki sometimes you build a crazy product that somebody starts sending bot to make that particular site down, and a lot of experiences make you to reach a level where you can be the one who is getting opportunities from all sides. You became a star in the college as well. So don't restrict yourself, just seeing yourself as a person from a branch. Don't differentiate among yourself. What will be the best way to, go into any field you want to do. Just have that zeal to work very well, and you will surely reach the success which you really want. So this was all about episode 4 of Kalpana Se Vastavikta Tha. Thank you so much, Sujal Bhaiya, for your insightful words. Thank you so much for your time. And thanks a lot for this platform. Thank you so much, Bhaiya. और मैं भी अपनी तरफ से स्लीप मोड पे डाल लेता हूँ।